today we will be starting about this chapter 1, which is provided in your supplementary textbook. The chapter name is the fun they had. Okay, ये chapter शुरुआत करेंगे और ये जो chapter हम शुरुआत करने के पहले like I have an ample of questions for you for me to ask to you, and if you are having any concern to say, you can say. Do we have time? Yes, you have to write your classwork in the rough book for the time being, especially when you are doing about your literature, like the textual things, whatever textual regarding you are doing, you will be writing that in your rough book. Okay, तुम्हारे rough book में फिलहाल लिखो, and probably like after your school starts, you can maintain a fire book for both separately. Okay. Without wasting any time, I'll start so that it will take already ample of time. So in this thing, I will be asking you if you want to say anything, you can unmute yourself. I have kept it on the basis of that only. Ma'am, Yes. don't we have to make two separate rough book for this grammar and No. The rough book itself is known as rough book. Rough book को rough book ही बोला जाता है. सेपरेट rough book क्या हो जाता है? फेयर बुक नहीं होता है वो. एक ही बुक में इकट्ठा करके सारी चीज लिख लो. अभी जब स्कूल शुरुआत होती है उसके बाद लाइक 2 फेयर बुक्स अलग से बना दीजिए. ठीक है, ये तो मैं पहले दिन से जब से ग्रामर की शुरुआत हुआ था तब से मैं यही बता रही हूँ ना तुमसे. और देखो दूसरी चीज, मैं ये जो म्यूट की सिस्टम रखी हूँ उसको अनम्यूट आपके मतलब इफ एनीवन वांट्स टू अनम्यूट एंड से समथिंग वो तुम कर सकते हो. ओके, उसी सेटिंग में रखी हूँ. एंड टुडे आई विल स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर द फन दे हैड. ये एक अच्छी स्टोरी है. बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी में भी तुमसे लाइक आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस. थोड़े बहुत क्वेश्चंस तुमसे मैं पूछने वाली हूँ रिगार्डिंग दिस. व्हाट इज योर आइडिया अबाउट schools? What is the meaning of school? Good. School मतलब क्या है? What kind of a school you are expecting to be? How your interest is pursuing in your online and offline classes? अभी तो बहुत सारे differences पता चल ही जाता है, पर क्या क्या differences आप अभी तक देखे हो? No need of maintaining any separate English book. Ma'am, Say. ma'am, can you repeat the question? I asked you, what do you think about school? What are the things you are thinking about school? Let me bifurcate. It is just for your knowledge. It is just for the example purpose. Online classes, you will be having a handful of ideas about this. Offline classes, इस दोनों का क्या डिफरेंस है? आज तक क्या क्या डिफरेंस तुम देख रहे हो? Ma'am, Yes. ma'am, in online classes there are many critical problems like the electricity issues, Wi-Fi issues. Yes. In offline classes there are one-to-one attention. Yes. Internet issues, or you can say even of electricity, and sometimes without reason you people like go out of this, like out of the desktop. Okay, and there will be like probably network, voice, clarity. Okay, these all are like different issues you used to probably face in online classes, but offline classes you will be getting opportunity to see the individual differences
Individual differences. You can see the direct method of teaching. Direct method is occurred. Evaluation takes place where you are being evaluated. Spot questions will be asked. Okay, so these are the things like now at this century, it is on the basis of like online lectures started, offline lectures started, and people started to learn. Of the starting of days, what happened? शुरुआत में कैसा हुआ था कि मतलब अगर छुट्टी दिया तो दिया। when कोविड, जब कोविड नया आया था, तब कोविड के बेसिस में कैसे हुआ था क्लासेस सब? थोड़े दिन के लिए छुट्टी था, बट उसके बाद सर्वाइविंग में प्रॉब्लम हो रही थी, राइट? एजुकेशन इज अ थिंग, हमको लाइक इट इज़ अ वेरी मेन स्ट्रीम एंड वेरी मेन क्राइटेरिया। उसको हम बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। सीखने बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं? शुरुआत के लिए स्टार्टेड विद दी ऑनलाइन लेक्चर्स। ऑनलाइन का भी शुरुआत तभी ये करती है। बट द फन दे हैव चैप्टर में दे आर फोकसिंग अबाउट द फ्यूचर स्कूल्स। फ्यूचर में स्कूल्स कैसा रहेगा? ओके, फ्यूचर में स्कूल में क्या क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। अभी तुमको समझ में आया रहेगा कि मैं क्यों ये निकाली, बिकॉज दिस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ फ्यूचर स्कूल। फ्यूचर स्कूल में यही हाल हो रहा है। लाइक नाउअडेज यू नो, आजकल के ज़माने में लोगों ने क्या करते हैं, पहले के साथ बैग है नो, यू शुड वेयर अ बैग, यू शुड टेक द बुक्स, कैरी बुक्स, मेक अ डिस्टेंस, गो ओवर देयर, वॉक फॉर योर स्कूल, कम्युनिकेट ओवर देयर। that learning level of strategy is different. वो level of learning totally like different है। and when we talk about this side, when we talk about the online classes, ना बैग लेना है ना कुछ लेना है, we have to like take a book and sit, और बुक लेके बैठते या नहीं लेकर बैठते कुछ पता नहीं चलता है। so you know like individual differences, whenever especially जब टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम देखते हैं, like we can't make out the individual differences. Probably now मेरी क्लास की जो अटेंडेंस है it is 63। हाँ, ऑफलाइन क्लास में मस्ती और बातें नहीं कर सकते। बातें हाँ, लाइक एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं, तुम कम्युनिकेट कर सकते हो। और देखो मेरे क्लास की स्टूडेंट अभी 63 है समझो। सो 63 स्टूडेंट्स में मेरे को सच में पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स अटेंटिव है या कितने स्टूडेंट्स सिर्फ अटेंडेंस देने के लिए आए। ओके, मैं ये नहीं बता रही कि सब अटेंडेंस ही देने आए, नो, आई एम नॉट कन्वेइंग दैट मैसेज। अटेंटिव स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर इन दिस, बट व्हाट हैपेंस, हम सामने से देख नहीं पाते, सो इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट। ओके, बहुत डिफरेंस हो ही जाता है। सो इन दिस इट इज अ स्टोरी अबाउट टू स्टूडेंट्स एंड अ टीचर। एक टीचर की भी स्टोरी है, टीचर स्टूडेंट के बीच में क्या है, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग, स्टूडेंट के बारे में, लाइक स्टूडेंट क्या सोच रहे टीचर के बारे में, एंड टीचर का क्या लीडिंग कैपेबिलिटी है, वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। इट इज अ वंडरफुल स्टोरी, कॉन्सेंट्रेट करो, अच्छे लगेगा, अच्छे समझ में आएगा। ओके, ये स्टोरी स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस टू यू बिफोर द स्टोरी। ऑलरेडी एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स हमने बात कर चुके हैं लाइक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लेक्चर्स की। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग लर्निंग इन हैंड एंड लर्निंग थ्रू कंप्यूटर? लर्निंग इन हैंड एंड लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। यस, ऑनलाइन क्लासेस हम ज़्यादा देर के लिए नहीं, गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि मैक्सिमम 3 डे रख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। ओके, learning in hand and learning in computer. What kind of a difference you face between this both? Yes, in hand knowledge क्या है, computer knowledge क्या है? Learning computer, some students for solutions and things like that, they share in the meeting. No. I'm not asking about the way of your communication. I'm not asking about online or offline lecture. Online offline lecture का जो टॉपिक हमारे चल रहा था, it is over. ओके, मैं क्या बोल रही हूँ, तुमको कंप्यूटर से ज़्यादा जानकारी मिलती है या किसी के सुनने से ज़्यादा जानकारी मिलती है?
लिसन करके, इन हैंड, लर्निंग इन हैंड, क्लास में जो चलता है, when teacher is teaching you something, at that point of time also you are learning something, right? जब टीचर तुमको पढ़ाते हैं तभी भी तुम सीखते हो, ओके? मैं ये नहीं बोल रही तुम नहीं सीखते, तुम सीखते हो। उसमें क्या डिफरेंस है? और जब कंप्यूटर को सामने रख के उसमें इंफॉर्मेशन देखकर सीखते हो, उसमें क्या डिफरेंस है? क्या तुमको बेटर लगता है? बोलो सब लोग अपना। हाँ, लर्निंग इन हैंड बिकॉज हम टीचर को ऐसे डाउट पूछते हैं तो कंप्यूटर पे नहीं होता। ओके, सो प्रॉब्लली तुम क्या बोल रहे हो कि नॉर्मली इन हैंड जब हम सीखते हैं तभी हमको ज़्यादा जानकारी मिलते है, बिकॉज समवन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, दे आर टेकिंग 1 hour और whatever टाइम एंड दे आर लाइक एफर्टिंग फॉर अस, हमारे लिए वो एफर्ट स्टार्ट है, इट्स नथिंग बट अ एफर्ट, राइट? कोई टीचर्स लाइक दे आर नॉट गोइंग टू कम एंड स्टैंड लाइक दैट इन द प्लेटफॉर्म, ऐसे ही खड़े रहेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू वेस्ट देयर टाइम और दे आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम आल्सो। मतलब जितने भी लाइक लेट इट बी द क्लास, लेट इट बी फॉर 5-15 minutes और लेट द क्लास बी फॉर 1 hour, for 50 minutes रहने दो या 1 घंटे रहने दो, whatever, we are efforting something, हम कुछ कर रहे हैं, we are hard working for it, we are using our efforts, सारे efforts डाल के we are coming up with the output of knowledge, okay? So इस जगह पे तुमको ज़्यादा जानकारी मिल रही है, so what do you say? कंप्यूटर में ज़्यादा जानकारी मिलता नहीं है, कंप्यूटर में ज़्यादा जानकारी मिलता नहीं है, मिलता है पर समझने में लर्निंग एंड इजी करता है। यस, मिलता है, इंफॉर्मेशन तो कंप्यूटर में से मिल ही जाता है, बट समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है, एंड हैंड टू हैंड परफॉर्मेंस में तो और अच्छे से ये करेगा। लाइक यू नो करिकुलम बेसिस पे अगर मैं तुमको सामने से कुछ बता रही हूँ या फिर उसी जगह पे इस पूरे कहानी को एक वीडियो जैसे बना के डाल दूंगी, समझो, इफ आई एम गोइंग टू मेक इट ऑन ऑडियो विजुअल बेस ऑल्सो, आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, अगर उस बेसिस पे डालूंगी तो तुमको क्या होगा, लाइक उसमें ज़्यादा मजा आ जाएगा, ओके? तुम उसमें ज़्यादा मजा लेने लगेंगे, सो दिस इज व्हाट विल हैपन इन दिस केस, ओके? सो लर्निंग इन हैंड, लर्निंग इन कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सो यू हैड सेड। और दूसरी एक चीज़, लाइक फ्यूचर में तो ऐसे हो जाएगा, द रोबोट्स विल बी कमिंग इन द क्लास एंड इट विल बी टीचिंग फॉर यू, द रोबोट्स विल बी गिविंग यू द हैंडफुल ऑफ इंफॉर्मेशन, सो उस जगह पे क्या हुआ? What do you think about the robotic teaching? What do you think about the robotic teaching? Yes. सिर्फ सोचल ही है, क्लास में कोई है नहीं है। I had unmuted you guys. If you have anything, if you have any views, you can speak up. Say. One robotic teacher can take all the subjects. Okay, one robotic teacher can take all the subjects. So what do you mean? The teachers want to be the robot for you guys? The teacher want to be the robot. Then how come you are saying that a robotic teacher can take all in hand? What is that? What your sentence actually mean? Even though the robot will also be providing the information, it can provide you the meaning. रोबोट्स मीनिंग बता सकते हैं, रोबोट्स इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, रोबोट्स तुम्हारे सर्विस भी कर सकता है, बट व्हाट डू यू थिंक? तो फ्यूचर में रोबोटिक्स आएगा तो बहुत मजा लेंगे, ऐसा है? No. जैसे समझ के सुनते ना, उसमें बहुत डिफरेंस होती है, ओके? सो हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और अ कंप्यूटर स्क्रीन? Can you imagine a time of all books on computers, there will be no books printed on paper? Would you like to such books better? So future में ऐसे भी हो जाएगा कि तुम्हारे सारे बुक्स जो है वो सारे तुमको PDF फॉर्मेट में कंप्यूटर में मिल जाएगी, कोई प्रिंटेड बुक नहीं रहेगा, there will be no printed books, whatever you want, what kind of a knowledge also you should grasp only through the computer, कंप्यूटर के थ्रू ही सीखना है फ्यूचर में। तो कैसे होगा तुम्हारे यहाँ? What will you feel at that point of time? मैं होमवर्क भी कंप्यूटर में टाइप करेंगे। होमवर्क भी कंप्यूटर पे टाइप करेंगे, वेल एंड गुड। होमवर्क भी टाइप करके फिर क्या करेंगे? मजा लेंगे, ओके? होमवर्क टाइप करने में भी उतना, उसमें भी और थोड़ा मजा आएगा, है ना?
पूछे टेस्ट कर सकते हैं कौन देते हैं इसमें ऑल्सो सॉल्युबल नाउ इसमें ऑल्सो सॉल्युबल नाउ Yes, ma'am. ओके ओके सॉरी यार एक्चुअली बीच में थोड़ा स्पीकर निकल गया था ओके सो नाउ लेट अस एंटर दिस चैप्टर इफ यू सी इस चैप्टर में 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स है देयर आर 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स अ टीचर अ स्टूडेंट एंड अ बॉय अगेन ही अगेन इज अ स्टूडेंट ओनली सो उनके बीच में क्या डिस्कशन हो रहा है उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है प्रोबेबली जब टीचर्स तुमको पढ़ा के चले जाते हैं एंड आफ्टर दैट तुम भी डिस्कस करते हो ना कि ऐसे ऐसे पढ़ा दिया कुछ समझ में नहीं आया या कुछ अच्छे से समझ में आया नहीं जो भी पढ़ाया था मुझे अच्छे से दिमाग में गया यू विल बी हैवी मतलब अगर हमने आपसे पूछते या नहीं पूछते हम जब मैं तुमसे जब मेरी फीडबैक लेती हूँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी गिविंग अ गुड रिव्यू राइट कभी कभार ये भी हो सकता है बैड रिव्यू यू विल बी सेइंग इट डायरेक्टली आल्सो बट आफ्टर दैट अपार्ट फ्रॉम दिस जब एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल जब तुम्हारे फ्रेंड्स से तुमसे पूछेंगे क्या भाई तुम्हारे पढ़ के हो गया तो तब तुम्हारे जवाब एक्चुअली आएगा ना नहीं हुआ या फिर नहीं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या फिर जो लेसन पढ़ाया था जो स्टोरी समझाया था मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं गया वॉट एवर इट इज या फिर वॉट यू विल बी सेइंग नहीं जो पढ़ाया था वो हमको अच्छे से समझ में आ गया ओके सो ये सारे कन्वर्सेशन किससे होगा सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स के साथ राइट सो इस जगह पे भी ये 2 स्टूडेंट्स है these 2 students will be comparing will be conversing will be suggesting they will और वो लोग फीडबैक भी देंगे सो क्या फीडबैक है कैसे वर्कआउट होगा करके देखेंगे यस मैम ये अभी कोरोना है उसके बारे में स्टोरी लिखी गई है अरे नहीं मैं तो तुम्हारे नॉलेज पर्पस के लिए अपडेटेड वर्जन में लिया था फ्यूचर स्कूल के बारे में बात चल रहा है तो फ्यूचर स्कूल तो अभी पैंडेमिक ही चल रहा है ना तो मैं मेरे हिसाब से इट वाज जस्ट गिवन ऑन द एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है मैम वैसे नहीं ये वन डे टाइम पर आइडिया है उनके ये स्टोरी पैंडेमिक के पहले ही हुआ था ये सब ठीक है लिखी गई थी ये पहले की पैंडेमिक का लिखी गई थी क्या ये उसके पहले ही लिखकर हो गया था यू चेक द पब्लिश ऑफ बुकिंग ईयर नो yes robotic teacher based simulation solution इट वाज अबाउट अ फ्यूचर इमेजिनेशन हम नहीं सोचते लाइक कल मेरा ये हो जाएगा हम बोलते हैं ना शायद ऑफलाइन स्कूल्स जल्दी शुरुआत होगा तो अच्छा रहेगा सो हमने क्या ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं शायद देयर आर चांसेस there are possibility for this to happen possible chances already है okay possibilities है confirmation नहीं है I am not confirming मैं confirm करके ये नहीं बोल रही हूँ कि फ्यूचर में यही होगा मैं बस प्रेडिक्ट करती हूँ मेरे हिसाब से कि फ्यूचर में ये भी हो सकती है ठीक है तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट अ प्रेडिक्शन स्टूडेंट ने कैसे प्रेडिक्ट करते करके ओके मैम मैम दिस पेज नंबर I am started on page number 5 These are the characteristics of this chapter. Marvi is a name of a girl. Boy, the boy is nothing but the friend of a girl and his grandmother. Okay, boy का कुछ specific नाम दिया नहीं है. अगर पढ़ने वक्त मिला है तो वो भी हम लिख देंगे. Okay, mechanical teacher की मतलब यही होती है the teacher who is teaching a computer or any other mechanical unit. Okay. मशीन्स के बारे में जो पढ़ाते हैं या फिर कंप्यूटर पढ़ाते हैं
उस टीचर को भी हम मैकेनिकल टीचर बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, काउंटी इंस्पेक्टर इज नथिंग बट अ person who is the head of the mechanical teacher who trains a mechanical teacher. Okay? Mechanical teacher a teacher who teaches computer or machinery work. क्या बेटा क्या बोल रहे हैं? See, I don't understand Gujarati. कुछ बोलना है तो फिर say it in English or use the word English. You have to write it on the textbook itself. इसके लिए separate notebook लिखने की कोई जरूरत नहीं है. बस words को underline करके लिखो. मैम पेन और पेंसिल। Pencil. ओके। बच्चे हैं ना, पेन से लिखो, पेंसिल से लिखो, मिटा हो सकता हूँ, मैं मिटा हूँ, सब कुछ लिखो, ठीक है? देखो, Margie even wrote about it in that night in her diary. Margie wrote the entire story. ये पूरी कहानी उसकी डायरी में वो लिख रही थी on the page headed 17th May 2157. So उसकी assumption में वो ऐसे लिखी थी कि 17th May 2157 we are pursuing on the 21st century. We are pursuing on the month of like a year of 2021. लेकिन मार्गी जो लिखी थी it was 2157 year में. Today Tommy found a real book. It was a very old book. आज टॉमी ने उस बुक को ढूंढ लिया है. Margie grandfather said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all these stories were printed on paper. They turned the pages which were yellow and crinkly. So Margie Margie is nothing but a name of a boy over here. Okay? Is the name of a boy over here. So like his assumption about this was like 2157 year में क्या होगा करके. It is all about an assumption. So उसने क्या किया था like उस वक्त उसके grandfather जो थे वो grandfather like ये बता रहे थे उसके पास जब हम पढ़ रहे थे when we were studying तब तो बहुत printed books चल रहा था. Printed books मतलब यही books है जो हम फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं. Okay? They turned the pages which were yellow and crinkly. They turned the pages which were yellow and crinkly. मतलब मोस्टली तुम लोग जब बुक्स यूज करेंगे ना वो बुक्स में मतलब जितने भी नया बुक जैसे तो नहीं रहेगा. आफ्टर यूज कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें दिख ही जाएगा. थोड़ा क्रिंकली रहेगा, थोड़ा फोल्डेड लाइंस रहेगा या पेज थोड़ा फोल्ड हुआ रहेगा. सो क्रिंकली का मतलब वही है. मैकेनिकल टीचर कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखियो ना मैकेनिकल टीचर. मतलब टीचर जो टीचर कंप्यूटर टीच करते हैं या फिर और कोई रिपेयर मशीन जो रहता है ना मशीनरी काम के बेसिस पे सिखाते हैं ना उनको भी मैकेनिकल टीचर करके बोला जाता है. मैं पहले स्कूल थी तो फ्यूचर में रोबोटिक टीचर लिखा है. उसमें अंडरलाइन करके लिखना है या फिर साइड में लिखो या फिर अंडरलाइन करके ऊपर लिखो वो तुम्हारे मर्जी है. ओके. सो जो प्रिंटेड बुक्स रहता है वो प्रिंटेड बुक्स यूज के ऊपर यूज में ना आई विल बी म्यूटिंग एवरीवन. मैं इसीलिए अनम्यूट करी हूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर पूछ लेंगे करके. अगर इसी
बाद में जब तुम रीड करने जाएंगे अंडरलाइन करके मीनिंग लिखा हुआ तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? मैम ये जो नाइकीज है वो बॉय का नाम है? Yes, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. So जब printed books में क्या होती है, probably कभी-कभार mistakes भी हो जाती है। जब शुरुआत में जब हम printed books का when we open it, we read about the book, we will when we read probably what happens in that case कि ऐसा लगता है कि सारे words repeat ही हुआ है, but the thing is repeat नहीं हुआ रहेगा, the formation of the words will be different. Okay. Guy said, Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for blending more. I would not throw it away. So, what Guy is the name of another person. They are conversing between the उन दोनों के बीच में बात चल रही है कि अगर मेरे से स्कूल की बुक्स कुछ रहती है, मैं तो वैसे भी उसको थ्रो कर ही देती हूँ। मुझे तो अभी ऐसे लगता है जो टीवी में इतने शोज आ रहे हैं ना, तो टीवी में इतने सारे शोज आ रहे हैं तो उसके लिए कितने सारे बुक्स होगा। अगर वैसे कुछ टीवी में आने का शोज की बुक भी होता है ना, तो बुक को मैं नहीं फेंकूंगा, मैं मेरे पास ही रखूंगा, क्योंकि टीवी शोज में क्या है प्रॉब्ली ये तो बहुत कॉमन चीज है, moreover the attachment which we have on books, it will be there more on television. Why? Because entertainment factor उसमें थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। television is nothing, it is on the purpose of entertainment. थोड़ा fresh कराता है, थोड़ा headache कुछ आती नहीं है, entertaining process है। So what Guy is saying to Tommy, मैं तो मेरा books जो रहता है, television का जो भी books अगर print किया हुआ रहेगा ना, उसको तो मैं किधर भी नहीं फेंकूंगा, I'll keep it for myself. Same with mine, said Marty. She was 11 and had seen many telebooks as Tommy had said. He was 30 and he said, where did you find it? So, if you see, उन दोनों के बीच में where do you find this type of books? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is the meaning of attic over here? मतलब वो लोग इसमें क्या बोल रहे हैं कि मैं जब यहाँ पे बुक्स सब पढ़ता था तो वो बुक्स रहेगा तो मैं उसको बहुत सेव करके रखता हूँ, लेकिन वो बुक्स होता नहीं है, तो फिर होगा तो फिर उसको भी सेव करेंगे ना, फिर वो बोलेगा यस अभी भी